ایشیا کپ میں میچ ریفری تنازع پر ڈیڈ لاک برقرار، پاکستان اپنے موقف پر سختی سے قائم۔ آئی سی سی کا متنازعہ میچ ریفری کو نہ ہٹانے کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ ذرائع کے مطابق پی سی بی نے آئی سی سی کو جوابی خط لکھ دیا، واضح کیا کہ پاکستان اینڈی پائیکرافٹ کی نگرانی میں کسی میچ میں شرکت نہیں کرے گا اور بائیکاٹ کے موقف پر قائم رہے گا۔ پاکستان نے متنازعہ امپائر کے خلاف آئی سی سی کی انکوائری کو بھی رسمی کارروائی قرار دیا۔ لکھا کہ انکوائری کے لیے تمام پہلوؤں کا جائزہ نہیں لیا گیا، نہ ہی متعلقہ لوگوں سے رابطہ ہوا۔ ذرائع کا بتانا ہے پاکستان کے سخت موقف کے بعد آئی سی سی کی مشکلات میں اضافہ۔ متنازعہ امپائر کو پاکستانی میچز سے ہٹانے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا۔ اینڈی پائیکرافٹ کو ہٹا کر رچی رچرڈسن کو میچ ریفری لگائے جانے کا امکان ہے۔ پاکستان اور یو اے کا آج شیڈیول میچ ہوگا یا نہیں، سب کی نظریں دبئی پر مرکوز، اسٹیڈیم جائیں یا نہ جائیں، ٹکٹس لینے والے شائقین تذبذب کا شکار۔ ایشین کرکٹ کونسل نے میچ کی پوسٹ شیئر کی پھر ڈیلیٹ کر دی۔ پاکستان اگر یو اے کے خلاف میچ نہ کھیلا تو ایشیا کپ میں سفر ختم ہو جائے گا۔ میزبان ٹیم 4 پوائنٹس کے ساتھ سپر 4 میں کوالیفائی کر جائے گی۔ ٹیم ذرائع کے مطابق اگر پی سی بی نے اجازت دی تو ٹیم انتظامیہ کی تمام تیاریاں مکمل ہیں۔ گزشتہ روز کرکٹرز نے 3 گھنٹے کا طویل ٹریننگ سیشن کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف 3 ملکی دورے کے پہلے مرحلے میں سعودی عرب پہنچ گئے۔ وزیر اعظم سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی دعوت پر دورہ سعودیہ کر رہے ہیں۔ ملاقاتوں میں علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ سعودی عرب کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف برطانیہ روانہ ہوں گے۔ برطانوی حکام کے ساتھ ملاقاتوں میں 2 طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر بات ہوگی۔ شہباز شریف 21 ستمبر کو برطانیہ سے امریکہ روانہ ہوں گے۔ 22 ستمبر کو نیو یارک میں فلسطین سے متعلق سربراہ کانفرنس میں شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم 26 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ اجلاس کی سائیڈ لائن پر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی شیڈیول۔ سیکیورٹی فورسز کا خوزدار میں آپریشن 5 بھارتی سپانسرڈ دہشت گرد جہنم واصل آئی ایس پی آر کے مطابق فتنہ ہندوستان کے کرندوں کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا۔ ہلاک دہشت گرد علاقے میں متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ قبضے سے اسلحہ اور بارودی مواد برآمد۔ ادھر بنوں میں میریان تھانے پر دہشت گردوں کا حملہ پولیس نے ناکام بنا دیا۔ 3 دہشت گرد ہلاک، 4 زخمی ہو گئے۔ کارروائی کے دوران 3 اہلکار زخمی ہوئے۔ دوسری جانب بلوچستان کے ضلع شیرانی میں دہشت گردوں کا پولیس اور لیوس تھانوں پر حملہ۔ ڈپٹی کمشنر شیرانی کے مطابق حملے میں بلوچستان کانسٹیبلری کا 1 اہلکار شہید، 2 زخمی اور 1 لاپتہ ہے۔ علاقے میں سیکیورٹی فورسز کا سرچ آپریشن جاری۔ علیمہ خان کی بانی پی ٹی آئی کے جیل ٹرائل منسوخی کے فیصلے کی مخالفت۔ پنجاب حکومت کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی کو قید تنہائی میں ڈالنے کے مترادف قرار دیا۔ مزید کہا ویڈیو لنک پیشی کی صورت میں بانی پی ٹی آئی وکلاء کی مشاورت سے محروم ہو جائیں گے۔ ایسا فیصلہ کسی صورت قبول نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے چیف جسٹس ہمارے زیر التوا کیسز میں قانون کے مطابق فیصلے دیں، سزاؤں اور ڈسکوالیفیکیشن کے معاملے کو ختم کیا جائے اور بانی پی ٹی آئی تک رسائی دی جائے۔ بیرسٹر گوہر کا 27 ستمبر کو پشاور میں بڑا جلسہ کرنے کا اعلان۔ جسٹس طارق جہانگیری کو کام سے روکنے کا 2 صفحات کا تحریری حکم نامہ جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم نامے میں کہا گیا کہ اس میں حساس نوعیت کے سوالات موجود ہیں۔ حساسیت کو دیکھتے ہوئے جج کو سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے تک کام سے روکا جا رہا ہے۔ عدالت نے اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد سے 21 اکتوبر کو معاونت بھی طلب کر لی۔ دوسری جانب جسٹس طارق جہانگیری کو کام سے روکنے کے حکم میں نیا موڑ سامنے آ گیا۔ کل کی سماعت کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کے حصول کی درخواست دائر کر دی گئی۔ درخواست بیرسٹر جہانگیر جدو نے رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی۔ پنجاب کی سیلابی ریلوں سے دریا سندھ میں شدید طغیانی۔ گڈو اور سکھر بیراج کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ریکارڈ۔ سیلابی پانی سے کچے کے متعدد علاقے زیر آب، لوگوں کی محفوظ مقام پر منتقلی۔ دادو کی تحصیل میہڑ میں سیلاب سے کچے میں زمینداری بند ٹوٹ گیا۔ گھوٹکی میں بھی اونچے درجے کا سیلاب، کئی دیہاتوں کا شہری آبادی سے زمینی رابطہ کٹ گیا۔ کوٹری بیراج میں سیلابی صورتحال، کچے میں آباد افراد پانی آ جانے کے بعد بند کے اوپر منتقل۔ حکومت متاثرین کی مدد کے لیے متحرک، متاثرہ افراد میں کھانا تقسیم کیا گیا۔
डी जी आई एस पी आर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का आज़ाद कश्मीर के तालीमी इदारों का दौरा, तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। तलबा ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। तलबा का कहना था वो पाक फौज के साथ खड़े हैं और किसी भी ज़रूरत पर जानों का नजराना देने से गुरेज नहीं करेंगे। पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। पाकिस्तान खित्ते में नेट रीजनल सैटेलाइजर के तौर पर उभर कर सामने आया है। अमरीकी सदर का 3 रोज़ा दौरा बरतानिया आज शाह चार्ल्स और बरतानी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर से मुलाकातें करेंगे। अमरीका और बरतानिया के दरमियान अहम मुआहिदों का इम्कान, एटमी तवानाई और IT शोबों में मुआहिदे होंगे। ज़राए के मुताबिक अमरीकी IT कंपनियाँ बरतानिया में $40 अरब की सरमायाकारी करेंगी। बरतानिया रवानगी से कबल ट्रंप का कहना था नेटो और यूरोप यूनियन रूसी तेल खरीदना बंद कर दें तो रूस पर पाबंदियाँ लगा सकते हैं। ट्रंप ने हैरान कुन तौर पर गजा में इसराइल की ज़मीनी कार्रवाई से लाइलमी का इजहार कर दिया। एक सवाल के जवाब में कहा अमरीका और चीन में टिकटॉक से मुतल्लिक मुआहिदा तय पा चुका है। अमरीकी कंपनियां टिकटॉक खरीदने में दिलचस्पी रखती हैं। दहशतगर्द इसराइल का गजा में ज़मीनी हमला, 7 फ़िज़ाई हमलों में भी शिद्दत। आज सुबह से अब तक 63 फ़लस्तीनी शहीद, 386 जख्मी हो गए। बमों की बरसात से मस्जिद समेत 17 बुलंदबाला इमारतें तबाह कर दी गईं। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल ने गजा सिटी को मुकम्मल खाली करने के लिए फ़लस्तीनियों को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। नोटिस में कहा गया कि जनूब की जानिब नकल मकानी के लिए आर्जी रास्ता जुमा तक फाल रहेगा। उधर इसराइल और अमेरिका का गजा में इमदाद का प्लान जानलेवा जाल निकला। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन फैसिलिटी मराकज़ पर अब तक 2500 फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका। 18,294 फ़लस्तीनी जख्मी हुए। गजा में नस्ल कुशी पर यूरोप यूनियन में भी आवाज़ें बुलंद। यूरोपीय कमीशन की इसराइल पर पाबंदियां लगाने की तैयारियां। आज होने वाले इजलास में इसराइल के खिलाफ इक़दामात पे गौर होगा। तिजारती हजम के 37% हिस्से पर पाबंदियों का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक चंद ममालिक पाबंदियों के हामी हो सकते हैं मगर अक्सरियत की मंजूरी मुश्किल है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा, कनाडा, फ्रांस और आयरलैंड ने गजा पर नए ज़मीनी हमले को खौफनाक करार दे दिया। कहा हालिया कार्रवाई इंसानी बहरान को मज़ीद संगीन बनाएगी। इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में ईरानी शहरी को सजाए मौत दे दी गई। खबर एजेंसी के मुताबिक बाबिक को 2 साल कबल मोसाद के साथ ताल्लुकात के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। ईरानी अदलिया ने बाबुक शहबाजी की सजाए मौत पर अमल दरामद की तस्दीक कर दी। उधर अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। महकमा खजाना के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी की मुंतकली पर ईरानी शख्सियात और कंपनियों पर पाबंदियां लगाई गईं। पाकिस्तान और यूएई में मैच नहीं खेला जाएगा, ज़राए ये कह रहे हैं, और ये अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट ज़राए से अभी खबर आ रही है। इट इज़ स्टिल नॉट कंफर्म्ड बाय द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एनी अदर मैनेजमेंट ऑफिशियल। ये सिर्फ सोर्सेज हैं जिससे हमें ये खबर मिल रही है। कासिम अब्बासी हमारे नुमाइंदे हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। कासिम, डू यू हैव एनी कंफर्म्ड अपडेट फ्रॉम पीसीबी? देखिए, अभी कुछ कहना कबल इस वक्त होगा क्योंकि अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आना बाकी है। और ज़राए ने हमें ये बताया है कि आज का जो मैच है वो जो मुश्किल लग रहा है कि पाकिस्तान और यूएई के दरमियान होने वाला 7:30 बजे पाकिस्तानी वक्त पर मुकर्ररा वक्त पर होना था, वो मुश्किल लग रहा है। ताहम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो अर्जेंट जो मीटिंग तलब कर ली है और 2 साबिक चेयरमैन रमीज राजा और नजम सेठी को भी मुशावरत के लिए चेयरमैन पाकिस्तान बोर्ड ने मोहसिन नकवी ने तलब किया है। और अब से कुछ देर बाद जो है 6:15 का हमें वक्त बताया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा, इसमें कुछ ताखीर भी हो सकती है, लेकिन ताहाल अगर मुशावरत के लिए नजम सेठी साहब को और रमीज राजा साहब को बुलाया गया है, ये बता दें कि ये मुशावरत अभी जारी है। अगर तो मुशावरत जारी है, इसका मतलब है कि फैसला वापस भी हो सकता है। देखें, अभी जो कुछ भी कहना का बस वक्त होगा क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी देने से गुरेज़ कर रहा है। मुशावरत इस वक्त जारी है जी, मुशावरत नजम सेठी साहब से और रमीज राजा साहब से जी, उनको तलब किया गया है और मुशावरत की जा रही है। साबिक चेयरमैन भी और दीगर जो ऑफिशियल्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, उनको भी तलब किया गया है और बड़ी सीरियस जो है वो मुशावरत की जा रही है क्योंकि एक बड़ा फैसला होगा अगर पाकिस्तान और
यूएई के दरमियान होने वाला मैच अगर कैंसिल किया जाता तो ये एशिया कप जो है वो उसको एक बड़ा झटका भी मिलेगा। आईसीसी से ये डिसीजन आ चुका है कि एंडी बायक्रॉफ्ट के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी और उसके बाद अब ये बॉल पाकिस्तान के कोर्ट में है कि हम मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, दैट इज एब्सोल्युटली आवर डिसीजन, उस पर मुशावरत हो रही है, राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मुतालबात थे जिसमें रेफरी का था मुतालबा किया गया था कि उनको ओहदे से हटाया जाए, जिसको मुस्तरद किया गया आईसीसी की जानिब से, और अब तमाम तर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोर्ट में बॉल डाली गई है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला करना है कि एशिया कप में पाकिस्तान कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा। और इस हवाले से अब से कुछ देर बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी जिस पर बाकायदा जो है हमें ऑफिशियली ये बताया जाएगा कि पाकिस्तान इस एशिया कप का हिस्सा रहेगा या नहीं रहेगा। अच्छा ठीक है कासिम, आपके पास इस हवाले से कोई खबर है या पीसीबी ने कुछ बताया हो कि जिस तरह आपने नजम सेठी साहब और रमीज़ राजा साहब का बताया, और भी कुछ लोगों से मुशावरत की मोहसिन नकवी साहब ने बतौर चेयरमैन? जी बिल्कुल, देखें जैसे कि साबिक चेयरमैन जो क्रिकेट बोर्ड थे रमीज राजा और नजम सेठी को बुलाया गया, मुशावरत उनसे भी की जा रही है और दीगर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाई ऑफिशियल थे उन तमाम तर जो है इस तरफ जो है साथ जोड़कर बैठे हुए हैं और इस हवाले से अहम जो मुशावरत जारी है, क्योंकि एक इंतहाई बड़ा फैसला होगा अगर पाकिस्तान इस एशिया कप से बाहर होता है तो ये कोई आसान फैसला नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई भी कदम लेने से अभी जो है वो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर रहा और एक जिम्मेदार बोर्ड होने की हैसियत से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब मुशावरत कर रहा है, जिसके बाद जो है एक ऑफिशियल स्टेटमेंट या ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसपे लेकिन कासिम इसमें प्रॉब्लम है ना, मुशावरत के बाद सपोजिडली अगर ये फैसला आता है कि जी हम खेल रहे हैं, हम नहीं जा रहे एशिया कप से, हमने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी है, हम खेलेंगे यूएई के खिलाफ भी, बट टाइम नहीं है ना इस वक्त, टॉस का टाइम होने वाला है थोड़ी देर में, तकरीबन 48 मिनट रह गए टॉस होने में, टीम अभी तक होटल में बैठी हुई है, तो ये डिसीजन उनको कम से कम अगले 5 मिनट में तो ले लेना चाहिए, 5-10 मिनट में से ज़्यादा हमारे पास मार्जिन नहीं है, तो क्या मैच आगे डिले हो सकता है, क्या ये आगे हो सकता है, पोस्टपोन हो सकता है, इस हवाले से कोई पॉसिबिलिटी है जिस पे बात हो रही है? देखिए अब चूँकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भी अब होटल में अभी तक है और क्योंकि अब जो मुकर्ररा वक्त था मैच का आज दोनों की टीम के दरमियान उस पर भी अब कुछ ही देर बाकी है और ये जो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अब फैसला ले लेना चाहिए, लेकिन उस फैसले से कबल बहुत सारे जो जेर गौर की जा रही हैं